Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, today we will start with the new chapter of our chemistry portion, that is the chapter number 4, carbon and its compound. Okay, we have studied in chapter number 3 its non-matter and the symbol is C. And this carbon compound is very important to us both in elemental form and as well as in combined form. It is present in so many substances. For example, all the living systems that are made up of carbon. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, hormones, nucleic acids, that all are made up of carbon. Okay? And all the things that we are eating, pulses, grains, fats, fruits, vegetables, okay, sugar, tea, coffee, or the clothes that we are wearing, food items that are also having carbon, okay, clothes that we are wearing that are made up of carbon, as we are getting these from some from plants and some from animals, okay, and the fuels that we are using, coal, LPG, wood, kerosene, CNG, compressed natural gas, okay, and soaps, detergents, okay, and most of the medicines also, in medicines also. So this compound is very important. Okay, this is found in so many substances. And there is one simple method to identify that whether any substance is having carbon or not. You just burn it. Okay, it will produce, on combustion, it will produce carbon dioxide and pass this carbon dioxide through lime water. Okay, pass that gas through lime water. If the lime water turns milky, that means it's a carbon dioxide gas and it is having carbon. That compound is having carbon. But students, in nature, this carbon is found in very less quantity or in very less amount. For example, in the earth's crust, only 0.02% carbon is there, okay, in the form of minerals such as carbonates, bicarbonates, coal and petroleum, okay, and in the atmosphere it is present in the form of carbon dioxide and only the percentage is 0.03%. Okay, in spite of this small amount of carbon present in the nature, available in the nature, okay, but the carbon compounds play a very important role in our lives because the carbon is present in almost in every substance. Okay, and the carbon is having special tendency, okay, some characteristics it is having that helps carbon to form so many compounds. Okay, so in this chapter we will study about those properties and those characteristics of the carbon, okay, and its compounds. So first we will start with bonding in carbon. ठीक है, कि कार्बन जो है वो बॉन्डिंग बनाता कैसी है, किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. ओके, एनी एलिमेंट और एनी एटम has the tendency to attain stability. वो क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है. Now there are different ways to attain stability. What the element can do, or atom क्या कर सकता है, it can lose electrons or it can gain electrons. Okay, by losing electrons it will form, क्या बन जाएगा ये, it will become cation, okay, and by gaining electrons it will become anion, okay, negative ion. And some atoms, what they can do, they can share electrons, okay, वो क्या कर सकते हैं, share कर सकते हैं electrons. This losing and gaining of electrons we have studied in chapter number 3. वो हम chapter number 3 में कर चुके हैं. The metals will lose electrons and the non-metals will gain electron. And that bonds formed by the transfer of electrons is called ionic bond. ठीक है, पर अब कार्बन को स्टडी करते हैं. कार्बन क्या करता है, we know that the atomic number of carbon is 6
electronic configuration is 2 4. 2 shells are involved, K shell, 2 L shell, 4 electrons. In the outermost shell 4 electrons are there. Now it has different ways. One, it can, क्या कर सकता है ये, it can lose 4 electrons और it can gain 4 electrons. ठीक है, लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है. सो लेट्स सी द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये क्या बेटर वे में कर सकता है. द वन, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाएगा, C4 नेगेटिव, एनाइन बन जाएगा. नाउ आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसने 4 और गेन कर लिए, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 10 हो गए. ओके, एंड द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज रिमेन सेम, दैट इज 6. प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, पर आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10. सो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, और साथ में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स एज इट्स साइज इज स्मॉल, दिस इज न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल. ठीक है, सो इतने छोटे से ऑर्बिट में, शेल में क्या है, बहुत 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. नाउ व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी, तो इट विल मेक द एटम, दिस आयन को वो क्या बना देगा, अनस्टेबल बना देगा. सो एनाइन जो होगा कार्बन का, दैट विल बिकम अनस्टेबल. सो 2 रीजंस हैं. क्या रीजन है, 1, इट इज डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना, दैट इज डिफिकल्ट. एंड सेकेंड वन, देयर विल बी द मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन. ठीक है, दैट विल ऑल्सो मेक द आयन unstable. Okay, now let's review the second point. Second क्या है, it could lose 4 electrons. 4 electrons ये lose कर सकता है, and क्या बन जाएगा, C4 positive cation बन जाएगा. Okay, it could form that. लेकिन 4 electrons को lose करने के लिए, okay, as its size is small, this is the nucleus, K shell, L shell. न्यूक्लियस छोटा है, ठीक है, सो सॉरी, साइज इसका क्या है, स्मॉल है. सो इट इज डिफिकल्ट टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, एज वी हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी. हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस एटम. ठीक है, तो ये भी मतलब नहीं रह जाता है, पॉसिबिलिटी नहीं है. और आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं. नाउ द 6 प्रोटॉन्स हैज टू होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल. ठीक है, तो वो भी इसको क्या बना देगा, अगेन ये आयन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, सो ड्यू टू दीज डिफिकल्टीज कि ना वो गेन कर सकता है ना वो लूज कर सकता है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस में बी आस्क्ड इन द एग्जाम इन 2 मार्क्स. ठीक है, तो आपको प्रॉपर रीजंस के साथ ये देना है. ओके, सो नाउ द कार्बन इज हैविंग चॉइस. ये क्या करेगा, ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा. इसने एक बीच का रास्ता चूज किया हुआ, इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन द वैलेंस शेल, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने में, आयनिक बॉन्ड बनाने में कौन हेल्प करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना, वही लूज होते हैं वही गेन होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन शेयरिंग. वो किस में, शेयरिंग में हेल्प करते हैं. क्या करते हैं, दोनों एटम्स जो हैं वो अपना जितने उन्होंने स्टेबल बनाने के लिए अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर बनाने के लिए उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर देते हैं.
ठीक है, दोनों तरफ से दोनों एटम शेयर कर देंगे. Okay, and that electrons will help in completing their orbits. That shared pair of electrons help in completing their orbits. For example, ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1. ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है. तो मान लेते हैं दिस इज न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, एंड दिस इज द के शेल. ओके, और के शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है. अब हाइड्रोजन को क्या करना है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्डिंग बनानी है, इट कैन लूज, इट कैन गेन, बट इट कैन शेयर ऑल्सो, ये शेयर भी कर सकता है. सो ये क्या करेगा, इट विल विद अदर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब इनको अपना ये डुप्लेट के शेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इन टोटल 2. So both these atoms will share their electrons. 1 ये देगा अपना, 1 ये देगा. और किस तरह से शेयरिंग करते हैं, ऐसे करते हैं ये. This is the K shell of 1 electron and this is of another. ये इन दोनों का न्यूक्लियस. ठीक है, here ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स. आई थिंक ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं. दिस इज़ द न्यूक्लियस. ठीक है, ये इसका के शेल एंड ये इसका के शेल. ओके, और ये इन दोनों का इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड. ये इस तरह से क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं. अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं ना, ये दोनों जब शेयरिंग करते हैं, व्हेन देयर इज अ रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन होगी दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है. बट यहाँ पर क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स. ठीक है, दोनों न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स. सो दोनों एटम्स के प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं. ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो वो इनको होल्ड कर लेते हैं. ठीक है, दोनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, होल्ड हो गए. तो अब शेयर्ड हो गए ना. ठीक है, तो शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की. नाउ दे बोथ आर हैविंग कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट. अब इनका के शेल क्या हो गया, स्टेबल हो गए. ठीक है, इनके के शेल्स क्या हो गए, दोनों के स्टेबल हो गए, मीन्स कंप्लीटली फिल्ड हो गए. Understood. Due to these protons, these 2 electrons get holded with each other. वो दोनों के साथ फिर होल्ड रहते हैं, इस एटम के साथ भी रहते हैं और इस एटम के साथ भी रहते हैं. अब होता क्या है, अब सिंपल वे में अगर हम बनाएं, जैसे ये हाइड्रोजन है. ठीक है, अब होता क्या है, when these electrons revolve, जब ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, so one by one they are completing this orbit. Okay, and then they move here, they both will rotate here and then they rotate here. ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टर्न बाय टर्न इधर से ऐसे ऐसे रोटेट करके क्या करते हैं, अपने डुप्लेट को दोनों में कंप्लीट कर देते हैं. ओके, नाउ दे विल शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दोनों के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ऑन पेपर वी विल शो इट लाइक दिस वे, कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया है. सो उसको हम एक लाइन लगा के शो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड. ओके, आपको यहाँ पे टर्म बता देते हैं. बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स. ओके, दैट आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स. और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कंपाउंड्स बनते हैं, दैट आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स. ओके, द नेम गिवन टू दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स. ओके, कोवलेंट बॉन्ड that are formed by the sharing of electrons, covalent compounds that are formed by sharing, that compounds are formed by sharing of electrons. Okay, now let's study about the types of bonds. ठीक है, अब हम types of bond करते हैं. Now on paper how to represent this sharing of electrons. जैसे हमने ionic compounds का किया ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने शो किया बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, वैसे ही हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन का ही केस लेते हैं, हाइड्रोजन, ओके, इट इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. सो वी विल शो विद 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब इसने ये शेयरिंग करनी है ना, वी नो दैट इट हैज़ टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, सो हम इसको कहाँ लिख देते हैं? सेंटर में लिख देते हैं. ओके, सो हमेशा याद रखो आपने शेयरिंग वाले को सेंटर में लिख देना है. अब दूसरा हाइड्रोजन है, तो वो भी क्या करेगा? अपनी शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो दे विल ऑल्सो शेयर. ठीक है, सो अब आपने इसको ऑन पेपर शो करने के लिए कि नाउ दे आर, दिस इज द शेयर्ड पेयर, इसको दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे? ऑर्बिट्स की ऐसे, ये इसका ऑर्बिट हो गया के शेल और ये इसका ऑर्बिट हो गया. ओके, सो आपने इस तरह से ओवरलैपिंग दिखा देनी है. ये ओवरलैपिंग से शो हो जाएगा कि दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से क्या करते हैं? वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. ओके, नाउ अब इन्होंने एक ही शेयर पेयर किया है. ठीक है, एक ही पेयर को शेयर्ड किया है, तो दे विल फॉर्म, हम इसको एक बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से. ठीक है, बाय सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड. ओके, नाउ सी द केस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है ना. ठीक है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2. ठीक है, 2 और चाहिए ना, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब आप इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स शो करोगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 2 हमने सेंटर में क्यों दिखाए? फॉर शेयरिंग. ठीक है, अब सेम ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? दूसरा भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा, तभी क्या होंगे? ठीक है, अब इसका ऑर्बिट आप कैसे दिखाओगे कि ये कंप्लीट हो रहा है? नाउ आप इसको इसके अंदर ले लोगे, तो दिस इज ओवरलैपिंग शोन. ठीक है, अब हो गए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस तरफ ये हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? ऑर्बिट्स बना के ओवरलैपिंग शो कर देते हैं. नाउ इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. ठीक है, और इस तरह से क्या हो गया? इन दोनों का ही ऑर्बिट कंप्लीट हो गया. ओके, सो आप टोटल देख लो, दोनों में इस तरफ से देखोगे तब 8, इस तरफ को देखोगे तो 8. ओके, ये इन्होंने शेयर कर लिया. नाउ दे हैव शेयर्ड 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे विद 2 लाइन्स. तो इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड. हम इसको कहते हैं डबल बॉन्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड. जब 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर होते हैं 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड. ऐसे ही अब ट्रिपल भी हो सकता है, मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकते हैं इन द केस ऑफ नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5, और इसको चाहिए कितने टू कंप्लीट इट? ऑक्टेट 3, तो दैट मीन्स ये 3 करेगा शेयर. ओके, सो हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे. अब 2 तो इसके अपने हैं. ठीक है, 3 वो जो ये पार्टिसिपेट करेगा इन द शेयरिंग, क्योंकि इसको 3 चाहिए. ओके, सो दूसरा नाइट्रोजन भी क्या करेगा? दैट विल ऑल्सो शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ टू शो देयर शेयरिंग और द ओवरलैपिंग, हम इस तरह से ही इनका ऑर्बिट बना देते हैं. ठीक है, अब जितने भी ओवरलैपिंग में आए हैं ये दोनों तरफ शेयर्ड हो रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और दिस नाइट्रोजन के लिए भी कितने हो गए? 8. सो इस तरह से दोनों का अपना ऑक्टेट कंप्लीट. ठीक है, सो दे हैव शेयर्ड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने बॉन्ड आ गए? 3 बॉन्ड्स. सो दैट मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसके बीच में 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इट विल मेक ट्रिपल बॉन्ड. कौन सा बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड.
सो इस तरह से आपका Cl2, ओके, Cl2, F2, ठीक है, H2 हमने बना लिया, O2 बना लिया, N2 बना लिया, दिस यू विल डू, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। ओके अब हम मॉलिक्यूल्स तो बना लिए, अब हम अदर कंपाउंड्स बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ओके, नेक्स्ट हम करते हैं वाटर, H2O है, ठीक है, वाटर, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को तो देना एक ही है, पर ऑक्सीजन को लेना कितने लेने हैं, इसको कितने चाहिए, चाहिए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके नहीं यूज होंगे ना शेयरिंग में, ठीक, तो वो आप बनाओगे, ओके, और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो 5 और 6 है दैट विल यूज इन शेयरिंग, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, सो इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 हाइड्रोजन एंड अनदर इलेक्ट्रॉन विद अनदर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी अपना अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। नाउ दिस इज द टाइम टू शो देयर ऑर्बिट्स, अब इनका ऑर्बिट्स दिखाएंगे हम, ये इस हाइड्रोजन का हो गया, ओके, दिस इज ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का, ओके, सो अब आप काउंट करके देख सकते हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 2, दिस हाइड्रोजन 2, सो इस तरह से इसने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। सो अगर आप इसको बॉन्ड दिखाना चाहो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ओके, सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सो मेनी कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स डू फॉर कार्बन, है ना, जो चैप्टर का नेम है वो भी कर लेते हैं, कार्बन। अब कार्बन का आप करते हो मीथेन का, मीन्स कार्बन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, इसको कितने शेयर करने हैं, 4 शेयर करने हैं कार्बन को, सो हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये शेयर किसके साथ करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, तो मीन्स 4 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, all the electrons of the carbon they are shared with 4 hydrogen atoms, ठीक है, वो इस तरह से शेयरिंग करेगा। नाउ दिस इज द डुप्लेट ऑफ दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस वन एंड दिस वन, ओके। अब कार्बन दिखाना है, कार्बन भी तो दिखाएंगे ना, कार्बन भी शो करेंगे, सो दिस इज, अब जितने भी शेयर्ड हैं वो सारे आप ऑर्बिट के अंदर दिखा दोगे, ओवरलैपिंग हो गई। अब कार्बन 2 4 6 8 और हर एक हाइड्रोजन के अपने अपने 2 2, दैट मीन्स कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा मीथेन में तो वो कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है और 4, ठीक है बेटे, दिस इज 4, ओके, 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। व्हाट इज द वैलेंसी, अगर आपको कोई पूछे वैलेंसी कितनी है 4 कार्बन की, इट इज 4, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 4, इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो दैट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। सो इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से आप इसको क्या कहते हो, टेट्रा कोवलेंट भी बोल देते हो और टेट्रा कोविलेंसी भी बोल देते हो, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4, ये 4 क्या बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, हमने मेनली पढ़ना तो कार्बन ही है, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, ओके, विद अदर एलिमेंट्स, किसी के साथ भी, ओके ओके। तो आप कार्बन के देखो बेटे, कार्बन की जो वैलेंसीज हैं, ठीक है, जो इसके 4 बॉन्ड्स हैं, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली जो कार्बन है ना, ये कैसी बनाता है, टेट्राहेड्रल शेप बनाता है,
ओके जैसे 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन होते हैं, ये उस तरह से अपने बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके इट इज टेट्राहेड्रल, मतलब 3D है। ओके जो इसकी बॉन्डिंग होती है ना, दैट इज 3 डायमेंशनल, 3D है। लेट्स सी एक आपको सिंपल सा दिखाते हैं। ओके जैसे मान लो दिस इज कार्बन और ये इसके क्या हैं, 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड्स तो इसके क्या हैं, 2D में है, 2 डायमेंशनल में है। ओके 1 बॉन्ड जो है वो पेपर के अंदर की तरफ को शो होगा, और क्योंकि 3D है ना, ठीक है, एंड दिस वन एक उसको ऊपर की तरफ को लगेगा। ओके ये आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके सो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अपने बॉन्ड्स का शो करता है, टेट्राहेड्रल होते हैं। दिस CH4 इज मीथेन। ओके ये क्या है आपका, मीथेन है। ठीक है, इसको आप बायोगैस, मार्श गैस बोल देते हो, जो बायोगैस रिएक्टर में गैस ऑब्टेन्ड होती है। दिस वन इज द मीथेन। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आप दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, जैसे हमने उधर आयनिक के किए थे ना बाय द क्रॉस, वैसे आप इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि दे हैव शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन के हैं और वो कार्बन के हैं। ओके सो नाउ योर होमवर्क इज टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर शोइंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग। Show the covalent bonding by the electron dot structure of CO2 NH3. Okay, CO2 NH3 and एक आपको दिया हुआ है that is Cl2 and F2. ठीक है, already given Cl2 and F2. So this is your homework and in this way they are forming the covalent bonds. See this table of melting points and boiling points of covalent compounds. Okay, there are few examples of carbon compounds. They are also known as organic compounds. ठीक है, organic का मतलब जो आपको कहाँ से मिलते हैं, plants और animals से मिलते हैं, that compounds are called organic compounds. और इन compounds को पढ़ना, ठीक है, chemistry में, that is called organic chemistry. Okay, this all you will study in higher classes under organic chemistry. Okay, so इधर देखते हैं, these are methane, chloroform, ethanol, acetic acid, ये इनके फॉर्मूला दिए हैं, CH4, CHCl3, ethanol, CH3, CH2OH, acetic acid, CH3COH. Here their melting and boiling points are given. ठीक है, ज़्यादा है या कम है, 90 केल्विन, 209 केल्विन, 156 केल्विन, कम ही है ना। Their melting and boiling points are less. ठीक है, कम है इनकी वैल्यू, वेरी लो है। सो दैट मीन्स अब ये लो क्यों है, जैसे आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई थे, ठीक है, यहाँ पर लो क्यों है, इसका मतलब कि इनकी जो बीच की बॉन्डिंग है दैट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वो जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो इजीली टूट जाती है। अंडरस्टूड, तो दैट्स वाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। ओके, लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, here is the difference between two compounds, ionic compounds and covalent compounds. Ionic compounds formed by transfer of electrons, these are formed by sharing of electrons. They are generally solids and they may be solid, liquid or gases. They are high melting and boiling points, okay, they are having, as their strong electrostatic forces are there, strong attraction है oppositely charged ions के बीच में, and they are having low melting and boiling points, as we have discussed their forces of attraction are not so strong. Okay, these ionic compounds that we have studied in properties of ionic compounds. Okay, these are soluble in water but insoluble in organic solvents such as benzene, petrol, etc. and covalent compounds that are इससे opposite है, insoluble in water है but soluble in organic solvents such as alcohol, benzene, petrol, etc. Okay, these ionic compounds they conduct electricity not in solid state but in solid form में तो वो नहीं करते हैं, but in molten form और solution form में वो क्या करते हैं, conduct electricity. But the covalent compounds they are not having any ions, क्योंकि वो ions तो बनाते ही नहीं है, ठीक है, so they do not
able to conduct electricity. They are bad conductors of electricity. Okay, so this is the difference between ionic compounds and covalent compounds. Now I am going to show one video related to these formation of ionic bond and covalent bond. Watch it carefully, okay, and revise the concept properly, okay, and do the homework. Okay, take care. Bye bye. Covalent bonding. Chemical compounds are formed by joining of two or more atoms. When electrons from different atoms interact with one another, a chemical bond is formed. Valence electrons, which are those found in an atom's outermost shell, are the only electrons that will participate in this bonding process. As two atoms approach one another, electrons in the outermost shell of one are repelled by the electrons of the other, while simultaneously being attracted by its protons. This interplay of forces results in some atoms joining and forming bonds. The two main types of bonds formed between atoms are ionic and covalent. Covalent bond is formed when valence electrons are shared between atoms. An ionic bond is formed when one or more electrons are completely transferred from one atom to another. Let's take a look at the simplest of covalent bonds, the bonding between two hydrogen atoms. Each atom of hydrogen contains a single electron. As the two atoms join together, they will share their electrons, creating a covalent bond. Halogens such as chlorine also form molecules through covalent bonding. In the case of a chlorine atom, there are 7 valence electrons. If two atoms of chlorine are joined together, they will share 2 electrons and form a covalent bond. Similarly, hydrogen and chlorine atoms will form a hydrogen chloride molecule through covalent bonding. The single electron from the hydrogen atom and one of the 7 valence electrons from the chlorine atom will form the bond. A double covalent bond is also possible in diatomic molecules such as oxygen. Two atoms of oxygen with 6 valence electrons will share 2 pairs of electrons and form a double covalent bond. If we look at a molecule of carbon dioxide, we can also see double covalent bonds. In this case, oxygen has 6 valence electrons and carbon has 4. The carbon will share 2 of its 4 electrons with one oxygen atom on one side and 2 additional electrons on the other side. This sharing of 4 electron pairs will result in 2 double covalent bonds in the carbon dioxide molecule.